मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टडी भाई में आपका स्वागत है। मैंने जो सीरीज चलाया था यूपीएससी 2024 के मेंस क्वेश्चन का मॉडल आंसर देना और उसके एक्सप्लेनेशन देना, उसमें ये आगे का वीडियो है जिसमें मैं आज 3 क्वेश्चंस को लूँगा, जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए डेमोग्राफिक विंटर, is the world moving towards such a situation? Elaborate. Question number 8. Distinguish between gender equality, gender equity, and women's empowerment. Why is it important to take gender concern into account in program design and implementation? ये सब 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है। इसका मॉडल आंसर, पहला का मॉडल आंसर इस प्रकार है। Cloudburst is an extreme weather phenomenon characterized by sudden intense rainfall over a small geographical area within a short period, usually exceeding 100 mm per hour. It is most common in mountainous regions like the Himalayas, where warm, moisture-laden air rapidly rises due to orographic lift. The condensed moisture is trapped in a narrow zone, and when the cloud can no longer hold it, torrential rain is released suddenly. Cloudburst often occurs with cumulus clouds accompanied by thunderstorms. Unlike normal rain, the precipitation is highly localized and concentrated, making it devastating. The sudden downpour lead to flash floods, landslides, soil erosion, and destruction of infrastructure, posing serious risk to human life and property. Recent climate change, deforestation, and plant construction in fragile ecosystems have increased the frequency and impact of cloudbursts. Effective early warning systems, disaster preparedness, and sustainable development practices are essential to mitigate their adverse effect. हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार है। क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना एक अत्यधिक वर्षा की घटना है जिसमें बहुत समय और सीमित भौगोलिक क्षेत्र में अचानक तेज बारिश होती है, जो सामान्यतः प्रति घंटा 100 मिलीमीटर से अधिक होती है। यह मुख्यतः हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, जहाँ नमी से भरी गर्मी हवाएं तेजी से ऊपर उठती है और ओरोग्राफिक लीफ के कारण संघनित होकर सीमित क्षेत्र में फंस जाती है। जब बादल इन्हें और नहीं रोक पाते तो अचानक मूसलाधार बारिश के रूप में पानी गिरता है। क्लाउड बर्स्ट सामान्य वर्षा से भिन्न होता है क्योंकि इसकी वर्षा अत्यधिक सघन और स्थानीयकृत होती है। इसके परिणामस्वरूप फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, मृदा अपरदन और बुनियादी ढांचे और का विनाश होता है, जिससे जन धन की भारी हानि होती है। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और अव्यवस्थित निर्माण के कारण क्लाउड बर्स्ट की आवृत्ति और प्रभाव बढ़ गए हैं। इससे निपटने के लिए प्रभावी पूर्ण चेतावनी प्रणाली, आपदा प्रबंधन और सतत विकास की नीतियाँ आवश्यक हैं। दूसरा क्वेश्चन का मॉडल आंसर इस प्रकार है। द टर्म डेमोग्राफिक विंटर refers to a prolonged decline in fertility rates and birth rates leading to shrinking populations, aging societies, and potential socio-economic challenges. It is marked by below replacement fertility, less than 2.1 children per woman, resulting in fewer younger people entering the workforce and a higher dependency ratio. This can strain social security systems, healthcare, and economic growth. Yes, many countries are moving towards such a situation. Developed nations like Japan, Italy, Germany, and South Korea are already experiencing demographic winter with fertility rates around 1.2 to 1.5. Emerging economies such as China and even India, in certain states like Kerala, are witnessing rapid fertility decline. According to the UN, two-thirds of the global population lives in countries with below replacement fertility. While Africa still sustains high birth rates, the global trends point towards an aging population demanding policy responses on migration, family support, and healthcare sustainability. इसका हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार है। जनसांख्यिकीय शीतकाल डेमोग्राफिक विंटर उस स्थिति को कहा जाता है जब प्रजनन दर और जन्म दर में लगातार गिरावट होती है, जिससे जनसंख्या सिकुड़ने लगती है और समाज तेजी से वृद्धि होता है। यह तब होता है जब प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर स्तर 2.1 बच्चे प्रति महिला से नीचे चली जाती है। इसके परिणामस्वरूप कार्यबल में युवाओं की संख्या घटती है तथा आश्रित जनसंख्या अनुपात बढ़ जाता है।
इसका प्रभाव सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक विकास पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। हाँ, विश्व में कई देश इस स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। विकसित देश जैसे जापान, इटली, जर्मनी और दक्षिण कोरिया पहले से ही इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, जहां प्रजनन दर 1.2 से 1.5 के बीच है। चीन तथा भारत के कुछ राज्य जैसे केरल भी तेजी से घटती प्रजनन दर दिखा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की 2/3 जनसंख्या ऐसे देशों में रहती है जहां प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से कम है। यद्यपि अफ्रीका में जन्म दर अभी भी उच्च है, लेकिन वैश्विक प्रवृत्ति वृद्ध होती जनसंख्या की ओर इशारा करती है, जिससे प्रवासन नीति, परिवार सहयोग तथा स्वास्थ्य सेवाओं में ठोस उपायों की आवश्यकता है। थर्ड क्वेश्चन का मॉडल आंसर इस प्रकार है: जेंडर इक्वलिटी refers to a state where men and women have equal rights, opportunities, and access to resources without discrimination. Gender equity emphasizes fairness by recognizing the different needs and situations of men and women, ensuring resources and opportunities are distributed justly to achieve equality. Women's empowerment goes beyond equality and equity, focusing on enabling women to gain power, control over resources, decision making, and participation in social, political, and economic spheres. Incorporating gender's concerns in program design and implementation is essential as women constitute half of the population and play a crucial role in development. Ignoring gender aspects often perpetuates inequalities, reduces effectiveness, and excludes vulnerable groups. Gender-sensitive policies ensure inclusive growth, social justice, and sustainable development. Empowered women contribute significantly to economic productivity, better health, education, and democratic participation. Thus, mainstreaming gender in programs is not just a moral obligation but a developmental necessity. हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार है: लैंगिक समानता उस स्थिति को दर्शाती है जहां पुरुष और महिलाएं बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार, अवसर और संसाधनों तक पहुंच रखते हैं। लैंगिक न्याय निष्पक्षता पर जोर देता है, जिसमें पुरुष और महिलाओं की भिन्न आवश्यकताओं व परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संसाधन एवं अवसरों का न्यायसंगत वितरण किया जाता है, ताकि समानता प्राप्त हो सके। महिला सशक्तिकरण, समानता और न्याय से आगे बढ़कर महिलाओं को संसाधनों, निर्णय लेने और सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जीवन में सक्रिय भागीदारी की शक्ति प्रदान करता है। कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं क्रियान्वयन में लैंगिक चिंताओं को शामिल करना आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लैंगिक पहलुओं की अनदेखी असमानताओं को बढ़ाती है तथा योजनाओं की प्रभावशीलता को घटाती है। लैंगिक संवेदनशील नीतियाँ समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और सतत विकास सुनिश्चित करती है। सशक्त महिलाएं आर्थिक उत्पादन, आर्थिक उत्पादकता, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए योजनाओं में लैंगिक मुख्यधारा अपनाना नैतिक ही नहीं बल्कि विकासात्मक अनिवार्यता भी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट जरूर दें। अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो इससे जुड़ें, आपको फायदा ही पहुंचेगा। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनको धन्यवाद।